Today we are going to start our next chapter, that is our fifth chapter of Beehive book, The Snake and the Mirror. And it is written by Vakil Mohammad Bashir and it is translated from the Malayalam by V. Abdullah. So you can see the title of this chapter, The Snake and the Mirror, and it's very interesting itself. So before starting our chapter, let's start reading the introduction. So this is a story and the story is a narrative within the narrative. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. कि जो ये स्टोरी है इसके अंदर जो राइटर है वो हमें ये स्टोरी बताता है जो कि उसे किसने बताई, एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने. As we see from the title, the snake and the mirror are the two most important things in the story. कि जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, इसका जो टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर. सो इसके अंदर जो ये स्नेक और जो मिरर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है इस स्टोरी के अंदर. दिस होम्योपैथिक डॉक्टर इनकाउंटर्ड अ स्नेक, द स्नेक फेल ऑन द डॉक्टर. कि इस स्टोरी के अंदर जो ये होम्योपैथिक जो डॉक्टर है उसका सामना एक स्नेक से होता है और वो स्नेक उसके ऊपर गिर जाता है. एंड व्हेन द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर इट वाज मोर इंटरेस्टेड इन दैट एंड द डॉक्टर्स लाइफ वाज सेव्ड. और जब ये जो स्नेक है इस स्टोरी के अंदर, जब ये अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई मिरर के अंदर देखता है तो ये और भी इंटरेस्टेड हो जाता है, ये स्टोरी और भी इंटरेस्टेड हो जाती है और कैसे जो है डॉक्टर की लाइफ जो है बच पाती है उस स्नेक से. सो वो हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हैज़ अ स्नेक ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. So firstly, I will give you the complete explanation of this stanza in English and after that I will tell you in Hindi. So in this passage, the writer is So in this stanza, the homeopathic doctor is narrating the story and he asks the writer and the group if anyone had ever been wrapped by a cobra snake. The audience became silent due to the fear of the cobra snake. So then the doctor narrated his story. Okay? कि जो इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अपनी स्टोरी बता रहा है और ही आस्क द राइटर, वो राइटर से पूछता है कि क्या आपने या आपके ग्रुप में किसी को जो है किसी का सामना कोबरा स्नेक से हुआ है? क्या क्या आपने कभी ऐसे फेस किया है कि कोई कोबरा स्नेक जो है आपको लपेटे हुए है? तो जो बाकी के जो ऑडियंस यानी बाकी के जो ग्रुप में जो उसके फ्रेंड्स थे वो सारे ये बात सुनकर, स्नेक के नाम से सुनकर ही खामोश हो जाते हैं. देन द डॉक्टर नरेटेड हिज स्टोरी. उसके बाद डॉक्टर जो है अपनी स्टोरी बताते हैं. अब वो क्या बताते हैं? इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. It was hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door, and the sound was a familiar one. So यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या कहते हैं कि it was a hot summer night, almost 10 o'clock, and he was returning home after having his dinner at the restaurant. As the doctor was opening the door of his room, he heard a noise from above, but he didn't react because he was used to such noises. So इसमें बताया है कि जो डॉक्टर है वो बताते हैं कि गर्मियों की रात थी और लगभग 10 बजे का टाइम था और वो रेस्टोरेंट से अपना खाना खाकर वापस आ रहे थे
और जैसे ही उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, अपने रूम का दरवाज़ा खोला, तो उन्हें ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन डॉक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, डॉक्टर ने रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज ही वाज यूज्ड टू सच नॉइजेस, क्योंकि इस तरह की आवाज़ें उसके रूम से आती रहती थी। वन कुड से दैट द rats and I shared the room. I took out of my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. अब kerosene lamp क्या होता है? Here you can see the picture of kerosene lamp. So यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि he was used to listen to this kind of noise and it was the noise of rats. So there were many rats in his room, so he used to the noise. कि उसके रूम में क्या था कि उसके रूम में इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी, वो फेमिलियर था उन आवाज़ों से, और वो कोई अलग बात नहीं थी। और यहाँ पर जो ये आवाज़ें आ रही थी, ये किसकी आ रही थी? ये रैट्स की आ रही थी, क्योंकि उसके रूम में बहुत सारे रैट्स थे। सो ही वॉज यूज टू द नॉइज, इसीलिए उसे इस तरह की आवाज़ सुनने की आदत सी हो गई थी। I took out my box of matches and light the kerosene lamp on the table. कि मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने टेबल से जो है एक मैचेस का बॉक्स निकाला और केरोसिन लैम्प को रखकर जलाया। मीन्स देयर वाज नो लाइट इन द डॉक्टर्स रूम, सो ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प विद अ मैच बॉक्स एंड ही हैड टेकन अ स्मॉल रूम ऑन रेंट। यानी कि ये स्टोरी से, इन लाइनों से हमें ये पता चलता है कि जो ये स्टोरी है ये बहुत पुरानी है। यानी कि ये उस टाइम की है कि या तो उस टाइम लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, या फिर ये उस टाइम की है ये स्टोरी कि ये भी हो सकता है कि शायद उसके रूम जो है, उसके रूम के अंदर कोई लाइट ना हो। ओके, सो आई हैड जस्ट set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. So यहाँ पे जो possessed का मतलब है had यानी कि होना, solitary का मतलब बिल्कुल अकेला, सिंगल। ओके, सो यहाँ पे राइटर क्या कहता है, meager mean small in quantity. Okay, so as he had just started his medical practice, he was earning very less, and that is why he was living in such a shabby, dirty condition. He told the writer that he had just 60 rupees in his bag, and further he added that he had some shirts and dhotis to wear. He also had a black colored coat which he was wearing at the time of that इंसिडेंट। कि यहाँ पे जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो क्या कहता है कि उसका रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वहाँ पे बिजली नहीं थी, और ये एक छोटा सा किराए पर लिया हुआ कमरा था। और वो अपने बारे में बताता है कि उसने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस जो है शुरू की थी, सो इसलिए उसकी जो कमाई थी, उसके पास जो पैसे आते थे वो बहुत ही थोड़े थे। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, वो कहता है कि मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे, और 60 रुपयों के साथ साथ मेरे पास अलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़। अब यहाँ पे धोतीज़ ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है धोती की, ये ऐसे होती है धोती। तो उसके पास जो है कुछ शर्ट्स थी और धोती थी। एंड आई ऑल्सो पोजेस्ट वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास केवल एक ही सिंगल ब्लैक कोट था, जो कि मैं उस इंसिडेंट के टाइम में, जो कि जब ये मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी सांप वाली, तो उस टाइम जो कि मैं पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप। हियर homeopathic doctor says he removed his coat, his shirt and his vest. He says that the vest was not so white, which means that it was dirty. यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना जो काले रंग का जो कोट था वो उतारा, टुक ऑफ का मतलब उतार देना, अपनी वाइट कमीज़ उतारी, और जो इतनी सफ़ेद जो बनियान थी उनकी, जो कि इतनी सफ़ेद नहीं थी,
वो उतारी। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा मैली थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी, और फिर उनको टांग दिया, उनको लटका दिया। I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard, and it had a tiled roof with long spotting gables that rested on the beam over the wall. So what is gable? Gable means upper part of a wall below a sloping roof. यहाँ पे आप देख सकते हो कि gable क्या होता है. Okay. And there was it had a tile roof with long spotting gables that rested on the beam over the wall, and there was no ceiling. So here yard means is an open area like a garden or veranda, and gable means अभी मैंने आपको बताया upper part of a wall below a sloping roof. So here homeopathic doctor says then he opened the windows. The room which he had taken on rent was on outside of the house, and one wall of the room faced the garden. The roof had tiles on it, and the gable was supported by the beams. Inside the room there was no roof. The beam on which the gable was supported was full of rats which went in and out of the room through it. तो जैसे ही उसने अपनी कमीज़ उतारी, अपनी वाइट ब्लैक कलर का कोट उतारा, और जो इतनी गंदी जो उसकी बनियान थी, जब उसने वो उतारी, फिर वो डॉक्टर जो है खिड़कियाँ खोलता है, और जो उसने जो रूम किराए पर लिया हुआ था वो आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो घर के बाहर था, और जो रूम की जो एक दीवार थी वो किसकी तरफ थी, वो किसके सामने थी, वो गार्डन के सामने थी। और जो ये रूफ थी, ये जो छत थी, वो किससे बनी हुई थी, इसके ऊपर टाइलें लगी हुई थी, और जो गैबल था वो वॉज स्पॉटेड बाय द बीम्स, उसको किसके द्वारा खड़ा किया गया था, बीम्स के द्वारा। एंड इनसाइड द रूम देयर वाज नो रूफ, और लेकिन जो रूम के अंदर था वहाँ पर कोई रूफ नहीं थी। द बीम ऑन विच द गैबल वाज स्पॉटेड वाज फुल ऑफ रैट्स, और जो बीम जो कि गैबल के द्वारा जो कि खड़ी हुई की गई थी, वो उसके ऊपर क्या होता था, वो भरी रहती थी रैट्स से, विच वेंट इन एंड आउट ऑफ द रूम थ्रू इट, जो जिसके द्वारा वो रूम के अंदर आते थे और बाहर जाते थे। I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I couldn't sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. So here taken time off means to take a day off, to take a holiday. Okay. So the homeopathic doctor says he set his bed near the wall and he laid down to sleep, but could not sleep. It seemed that the wind god had taken time off, means that as the wind was not blowing, the wind god had taken a day off. He was on holiday, and so wind was not blowing at all. He had gone to get some fresh air because he did not have any fan or cooler in his room, and he was feeling very hot. अब यहाँ पे जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो क्या कहता है कि उसने जो है अपना बेड जो है बिल्कुल दीवार के नज़दीक उसको सेट किया, और जैसे ही वो सोने के लिए लेटा तो वो सो नहीं सका, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके कमरे में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इसीलिए वो बाहर वरांडे के अंदर लिटिल एयर लेने के लिए, ताज़ी हवा लेने के लिए, ताकि उसे थोड़ी गर्मी से राहत मिल सके, वो बाहर आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, ऐसा लगा जैसे कि जो विंड गॉड है वो भी हॉलीडे लेकर चले गए हैं, मीन्स वहाँ पर भी बाहर कोई भी हवा नहीं चल रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. So he came back to his room and sat on a chair. And he opened the box under the table and took out a box named Materia Medica, and he kept it on the same table on which a lamp, a mirror
and a small comb was lying. So he opened it and sat down. इसके बाद वो वापस अपने रूम में जाता है और रूम में जाके वो चेयर पर बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे से, बीनीथ मीन्स अंडर, टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकालता है, उसे खोलता है और उसमें से एक बुक निकालता है और उस बुक का नाम था मैटेरिया मेडिका। और फिर वो उसे खोलता है उस टेबल के ऊपर रखकर और उस टेबल पर एक लैम्प, एक बड़ा सा मिरर और एक छोटा सा कॉम्ब रखा हुआ था और फिर वो उस बुक को अपने टेबल पर खोल कर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty, and I believed in making myself look handsome. So, as he was sitting in front of the mirror, he looked at his image in the mirror, and he says that he was a great admirer of beauty. As he was a young man, he liked to appreciate beautiful things and wanted to improve his looks to look more handsome. So यहाँ पे जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो अपनी ब्यूटी के बारे में बताता है कि वो कितना हैंडसम है और लोग उसकी ब्यूटी को कितना जो है अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं। तो वो डॉक्टर कहता है कि हर एक कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी मिरर के अंदर देखता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम समझता है, उसको वो ऐसा समझता है कि वही इस दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सन है। और अगर वो इसके नज़दीक जाकर देखता है तब तो ब्यूटी उसकी और बढ़ जाती है। तो मैंने भी एक झलक ली और उन दिनों में तो मेरी ब्यूटी की बहुत तारीफ़ की जाती थी और मुझे भी अपने आप को जो है सुंदर दिखाने में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं सच में एक हैंडसम पर्सन था। सो आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर and I felt I had to make my presence felt. So इन लाइनों में कुछ ह्यूमर सा आ रहा है कि यहाँ पे राइटर कहता है as he was unmarried and he was a doctor too, he was a eligible bachelor, so he wanted to make people know that he was also available. यानी कि यहाँ पे वो अपने आप के बारे में बता रहा है कि वो अनमैरिड है और साथ ही साथ एक डॉक्टर है, तो इसीलिए वो लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहता है कि भी आप लोगों के बीच में एक हैंडसम पर्सन अवेलेबल है जो कि एक अनमैरिड भी है और साथ ही साथ उसके पास जो एक अच्छा प्रोफेशन भी है, वो एक डॉक्टर भी है। सो आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। सो ही कॉम्ड हिज हेयर ट्राइंग टू सेट द प्रॉपरली। अब वो क्या करता है कि भी वो इतनी देर से मिरर के अंदर देख रहा है, अपने आप को एडमायर कर रहा है, अपनी प्रेज कर रहा है, तो यहाँ पे अब वो एक कॉम्ब उठाता है और उसे क्या करता है अपने बालों में चलाता है ताकि अपने बालों को अच्छे से ठीक ढंग से वो प्रॉपरली उनको सेट कर सके और वो दिखने में अच्छे लगे, सीधे लगे। So again I heard the sound from above. When he was combing his hair, he again heard the same sound from above but ignored it. कि जब वो कॉम्ब कर रहा था अपने हेयर को तो उसे दोबारा से वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब की बार उसने उसे फिर से इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसी आवाज़ें तो उसके रूम से आती रहती थी। So I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. So he looked carefully in the mirror and decided that he would shave daily and grow a thin mustache because he thought that he would look better and more handsome with it. कि जो वो मिरर के अंदर देख रहा था, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था, बिल्कुल क्लोज जाके वो अपने आप को मिरर के अंदर देखता है तो वो एक इम्पोर्टेंट फैसला लेता है, डिसीजन लेता है कि अब से वो डेली शेव करेगा
और हल्की हल्की मूछें अपने चेहरे पर उगाएगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा सुंदर दिख सके, जिससे कि उसकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा निखार आए, वो लोग उसकी और ज़्यादा जो है उसको अप्रिशिएट करें। I was after all a bachelor and a doctor, क्योंकि वो क्या था, वो एक बैचलर भी था एंड एक साथ साथ एक डॉक्टर भी था. So I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. So I looked into the mirror and smiled, and it was an attractive smile. So earth-shaking decision means something very important. So here the doctor appreciating himself and said that he had an attractive smile, and another thing that he decided was that he would always keep smiling because he looked better when he smiled. So the doctor was being ironic when he said that to keep smiling was an earth-shaking decision. सो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो जब मिरर के अंदर देख रहा था, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था, तो उसे जब वो मिरर के अंदर देखते तो उसे क्या लगता है कि भाई इसकी तो स्माइल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है. तो अब की बार वो एक और बहुत बड़ा डिसीजन लेता है कि अब ये जो अपनी जो अट्रैक्टिव स्माइल है इसे बरकरार रखेगा, इसे अपने चेहरे पर हमेशा रखेगा, क्योंकि जब ये हंसता है, स्माइल करता है, तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है. एंड आई वॉज आफ्टर अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. On top of it means to add on to something. And again he is stressing that he was a bachelor, and to add to it he was also a doctor. He thought that he had a lot of value and that is why he wanted to look हैंडसम. और वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, बार बार ये स्ट्रेस दे रहा है कि भाई वो एक बैचलर है और इससे ज़्यादा बढ़कर वो एक डॉक्टर है. तो ये वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो ये सोचता है कि उसकी जो है सोसाइटी के अंदर, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके ग्रुप में बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है और इसीलिए वो अपने आप को हैंडसम दिखाना चाहता है. अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबोव. दोबारा से वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. जैसे उसने पहले किया था कि उसे इग्नोर कर दिया था, तो अब की बार भी उन वॉइस को, उस साउंड को वो इग्नोर कर देता है. आई गॉट अप, पेस्ड अप and down the room. Then another lovely thought struck me. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. So she had to be fat for a valid reason. If I had made some silly mistake and I needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. So here paced mean walked, and valid mean logical, justifiable. So the doctor says he got up from his chair and started walking up and down in the room, and then he decided one more thing. He decided to marry a woman doctor, one who had lots of money and a good medical practice. So further the doctor thought that he would marry a fat girl. For that he had a logical reason also. He reasoned that if sometime he makes some mistakes and his wife chases him in anger to hit him, she will not be able to run fast and catch him if she would be fat. सो अब वो जो डॉक्टर है वो अपनी चेयर से उठ जाता है और यहाँ वहाँ रूम के अंदर घूमना शुरू कर देता है. फिर वो एक और चीज़ जो है डिसाइड करता है कि वो अब क्या डिसाइड करता है कि भाई वो एक वुमेन डॉक्टर से शादी करेगा और एक ऐसे डॉक्टर से शादी करेगा जिसके पास बहुत सारे तो पैसे हों और जिसके पास एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो. और उसके बाद वो ये सोचता है कि वो एक फैट गर्ल से शादी क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास एक लॉजिकल रीज़न भी है इस चीज़ के लिए. क्योंकि अगर मान लो वो कभी कोई गलती करता है
तो अगर वो गलती करेगा तो उसकी वाइफ अगर उसका गुस्से में उसका पीछा करेगी, उसे मारने की कोशिश करेगी, तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत मोटी होगी तो उसे भागा नहीं जाएगा, और भागा नहीं जाएगा तो वो उस डॉक्टर को नहीं पकड़ पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as a rubber tube had fallen to the doctor. So, thinking all these things, the doctor again sat down on the chair. Now the sound had stopped, but all of a sudden something fell down, making the sound of a thud. It felt like some rubber tube had fallen, and the doctor didn't bother about it. So अचानक से जो माइंड के अंदर जो ये थॉट्स आ रहे थे, उन थॉट्स को लेकर वो चेयर जो कि टेबल के सामने रखी हुई थी उस पर बैठ जाता है। और अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ऐसी, लेकिन अचानक से कोई ऐसी डल थर्ड यानी कि कोई रबर ट्यूब के जैसा कुछ नीचे ग्राउंड में गिरा, और डॉक्टर ने अब की बार भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. But then he thought of turning around to see what had fallen, and as he turned, he saw that a big fat snake had crawled over the chair and sat on his shoulders. The timing of the doctor's turning around and the snake landing on his shoulder was the same. So here wriggled mean crawled and simultaneous mean happened at the same time. तो जैसे ही डॉक्टर पीछे की तरफ मुड़ता है ये देखने के लिए कि भी आवाज़ किसकी आई है, रबर ट्यूब जैसा क्या गिरा है, तो जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है एक मोटा सा एक फेट स्नेक जो है वो उसके पीछे चेयर के ऊपर आकर रेंगने लगता है, क्रॉल करने लगता है, और वो उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। और जो स्नेक का उसके कंधे पर गिरना और डॉक्टर का पीछे मुड़कर देखना, दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पर होती हैं। सो आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट. There was no time to do any such thing. So here the doctor didn't panic, jump or tremble. He did not shiver, he did not scream. It happened so fast, so instantly that he did not have any time to react. यानी कि ना तो वो डॉक्टर जंप कर पाता है, ना ही वो ट्रेम्बल मीन काँप पाता है, ना ही वो चिल्ला पाता है, बिकॉज उसके पास ये सारी चीज़ें करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म एल्बो. So here slithered means twisting and crawling motion of the snake. So the snake moved in such a way that it wrapped itself on the doctor's left arm like a coil. जो स्नेक है वो धीरे धीरे फिसल कर उसके कंधे पर आ जाता है, और कंधे पर आने के बाद वो उसकी जो लेफ़्ट आर्म की जो एल्बो है वहाँ पर कॉयल करके यानी कुंडली मार के वो वहाँ पर अपने आप को लपेट लेता है, वहाँ पर वो बैठ जाता है. ओके. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. जो स्नेक होता है उसका हुड मीन्स जो ऐसे जो स्नेक होता है तो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड हुड. सो द हुड वॉज स्प्रेड आउट एज एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस. सो हुड मीन्स हेड ऑफ द snake. So it was in such a position just 3 or 4 inches away from his face that if he would have moved slightly, the snake could have bitten him.
सो जैसे ही वो उसके लेफ्ट आर्म एल्बो पर आकर जब वो लिपट जाता है तो जो हुड है जो स्नेक का वो बिल्कुल उसके चेहरे से लगभग 3 या 4 इंचेस की दूरी पर होता है, बिल्कुल उसके नज़दीक होता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वो स्नेक उस होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ क्या करता है, क्या वो होम्योपैथिक डॉक्टर बच पाता है या नहीं बच पाता है, और अगर वो बच पाता है तो कैसे वो बचाव करता है अपना। तो ये सब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।